यहाँ तक आने का जो सफ़र है, who motivated you, who inspired you to be in this field specifically? So basically, it's like every ordinary child. You started dreaming of when you are in early ages, but when you grow up a bit, so you realize, okay, the doctor is the real thing, or the engineer is the real thing, and then you further go on your journey. I started off realizing the financing is the name of the game. I feel good. तो ये बताएं कि इतना अरसा आपने जब बैंकिंग सेक्टर में लगाया है, do you invest yourself as well? Yeah, definitely. When you're part of the equity market, so obviously it's a natural attraction. एक ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर का काम होता है कि उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करे अपने इन्वेस्टर्स को, उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करें. तो अगर कोई यंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट ये देख रहा है या कोई भी अपना ब्रोकर सिलेक्ट करने जा रहा है, क्या चीज़ें हैं जो किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करने के टाइम पे देखनी चाहिए? और मुझे बताएं ब्रोकर ऐप्स के बारे में. तो सबसे पहले तो आप मेरी ऐप डाउनलोड करें, जेस इन्वेस्ट प्रो, बिकॉज दैट्स द नेम ऑफ द गेम. अस्सलाम वालेकुम, हाय, आई एम खलील उस्मानी, CEO JS Global. Don't forget to subscribe to Hassan. अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much, ma'am, for सबसे having me. पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. So thank you so much for having me actually. आई एम रियली हैप्पी एंड आजकल मैं पर्सनल फाइनेंस पे वैसे भी बहुत काम कर रही हूँ, अपने नहीं दूसरों के भी साथ साथ. सो हम कंटेंट खास तौर पे इस पे बना रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स आर नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, रियलाइज़ कर रहे हैं इसको, एंड आई एम होपिंग कि हम हेल्प कर सकें आज उनको. तो सबसे पहले मुझे बताएं, सो ऑफ कोर्स JS से आपका ताल्लुक़ है, आपका नेम टाइटल विद डेजिग्नेशन नीचे आ जाएगा तो लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन जो उसके पीछे की कहानी है वो अक्सर लोगों को नहीं पता चलती. आई वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड एंड सो आपकी अपनी आप इंटर्न से आपने शुरू किया, नाउ ऑफ कोर्स यू आर द CEO ऑफ JS Global. तो उस जर्नी के बारे में मुझे बताएं कि यहाँ तक आने का जो सफ़र है, हु मोटिवेटेड यू, हु इंस्पायर्ड यू टू बी इन दिस फील्ड स्पेसिफिकली, अबाउट द बचपन. Thank you so much, mom, again, once again. So basically, it's like every ordinary child. So, you started dreaming of when you are in early ages. So your mom and dad used to, discipline you. And you started off thinking, yaar, when they discipline you, they always make you like go for the forces, like they are doing it. So you always inspire them. So initially, but when you grow up a bit, so you realize, okay, the doctor is the real thing, or the engineer is the real thing, and then you further go on your journey. Once you're in your after the 10th grade or something, when you are actually coming into the real life, then you start off, okay, so money making is the thing. So when you realize that, then you try to inspire for the people who are doing good actually. So that's where it started. So I was one of my actually cousin is in the banking sector, so that's really Okay. inspires me actually. Okay. So I planned I should be going for the banking sector. So I started off realizing the financing is the name of the game. I feel good, like I feel comfortable doing this. So that's where it started off. So it's the journey is like this. When I was doing my graduation, so I have to go for the internship. So my aim is to go into the banking sector. So my cousin, and that particular time, he said, okay, he was working for a brokerage house at that time, and he said, okay, go for the equity market. So at that time, I didn't know actually about the equity market. But once I entered, actually, I never looked back since then. So it's been 20 years of the journey. So I never looked back because this really touches me since then. Once I'm in, because, you feel connected. Everything because you try to connect. Once you are into the stock field, there are 600 companies listed into the stock exchange, and you come to know every business. You understand, you try to incorporate what's happening in the world. So it really connects me. So this is the journey that really inspires me actually. तो ये बताएं कि इतना अरसा एंड इतना टाइम स्पैन आपने जब बैंकिंग सेक्टर में लगाया, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी ऑफ कोर्स, तो डू यू इन्वेस्ट योरसेल्फ एज वेल? Yeah, definitely. When you're part of the equity market, so obviously it's a natural attraction. क्योंकि आप you are analyzing. But once I became a broker, where basically you're handling the portfolio of the client. So I feel like, or I promote rather, I would rather say that, कि आपका conflict of interest हो जाता है being a trader. ठीक है, और हमारी when we have this policy in our company as well कि trading generally traders should not be doing, because I want them to see through the portfolios of their clients, because that's where I feel कि it's a conflict of interest for them. कि अगर वो खुद का काम करेंगे तो उनके इमोशनल अटैच हो जाएंगे स्टॉक के साथ, और जब इमोशनल अटैच हो जाएंगे तो वो बाज़ दफ़ा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं दे सकते क्लाइंट को. सो आई थिंक उनको एक
इंडिविजुअलिटी में और रियलिस्टिक प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करना है स्टॉक को और पिच करना है एज पर द न्यूज़ गोइंग थ्रू, और उनको पिच करना, तो इमोशन अटैच नहीं होने चाहिए. ओके. So that's why I believe that I do invest. It's a long-term investment, but I rather feel कि once you are part of this field, आपको focus करना चाहिए on the investment horizon. So it's daily routine for us, making people understand what to invest, where to invest, how to look at the portfolios, how to see, how to read balance sheet. These are the basic questions you should be asking when you are in any other industry, and you should be asking. And even you go and purchase the car, actually, you try to look at how it feels, what is the mileage it provides. So for a stock, once you are going into the stock market, so आपको बेसिक चीज़ें पूछनी चाहिए. बिज़नेस क्या करती है कंपनी, किस किस्म के बिज़नेस में, इंडस्ट्री क्या कर रही है, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस, पैसे कितने बना रही है. तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं. ये हमें बीइंग अ ट्रेडर लोगों को बताने भी चाहिए while you're pitching to the stocks. Okay. Or even being an investor, you should ask such questions to your clients. अच्छा, तो मैं थोड़ा सा वापस से जाऊंगी बेसिक पे, ताकि जो लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम उनको थोड़ा सा आइडिया हो. एक ब्रोकर का काम क्या होता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज हम यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की भी बात कर रहे हैं. थोड़ा सा लोगों को आइडिया दें, फिर हम इन्वेस्टमेंट पे भी आएंगे. देखिए, बीइंग अ ब्रोकर का काम होता है कि उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करे अपने इन्वेस्टर्स को, उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें. ठीक है, और आपको ब्रोकर शुड रीड द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स. देयर आर इन्वेस्टर्स, दे शुड एबल टू गाइड देम कि उनकी नीड के रिक्वायरमेंट के मुताबिक पोर्टफोलियो कौन सा बेहतर है. आर दे पैसिव इन्वेस्टर्स, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, दे शुड मूव टूवर्ड्स डिविडेंड यील्ड पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आपकी डिविडेंड यील्ड्स होती हैं. उनको ट्रेडिंग करनी है तो दे शुड लुक एट द ग्रोथ स्टॉक्स, कि ग्रोथ स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें ग्रोथ आ सकती है, जो कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अपने क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं ये? तो बिल्कुल, दिस इज़ द ब्रोकर्स, यू नो, वी नीड टू टेल देम एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स द न्यूज़ ऑफ द डे. एंड व्हाट्स द मीडियम के, मतलब क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बनते हैं? Basically, you know, trader should be calling him on a regular basis. अब now there's a medium is obviously WhatsApp. आप WhatsApp पे बता सकते हैं. Even हमारे जो social media handles हैं उस पर हम प्रमोट कर रहे होते हैं. हम अपनी रिसर्च कॉल्स निकाल रहे होते हैं, टेक्निकल कॉल्स निकाल रहे होते हैं, जिससे हम उनको अवेयर कर रहे होते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में रहना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में नहीं रहना चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूज़, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वल्नरेबल प्लेस. किस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है स्टॉक के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट एनालाइज करना चाहिए आपको कि और ट्रेडर शुड हेल्प देम डूइंग इट. इफ़ क्लाइंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके टैरिफ्स बढ़ गए हैं इंटरनेशनली, टैरिफ्स जिस तरह अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ्स के इम्प्लीकेशन कर दिए है चाइना के ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड, उसका इम्प्लीकेशन क्या आ सकती है, या पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे क्या हो सकता है, कोई बेनिफिटिंग इंडस्ट्री है या नहीं है. सो यू नीड टू रिलेट इट. द ट्रेडर शुड बी डूइंग इट, should be in, you know, enlightening their clients, educating them. So this is the and helping them selecting the stocks. क्या एक ब्रोकर के साथ मैं 2 अकाउंट खोल सकती हूँ? नहीं, दो अकाउंट खोल सकते हैं आप. You know, it depends what's the need of this. एक अकाउंट आपका इंडिविजुअल है, एक अगर आप किसी के साथ जॉइंट खोलना चाह रहे हैं तो खोल सकते हैं आप. अच्छा. सो आई वाज टॉकिंग टू अमार यासीन, जो कि को फाउंडर है सरमाया फाइनेंशियल्स के, और मैं बात कर रही थी वली खान, जो कि पर्सनल फाइनेंस यूट्यूबर हैं. तो कल परसों दोनों के इंटरव्यूज़ हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि और उन्होंने कहा कि खोल सकते हैं. तो मैं कंफ्यूज हो गई. मैंने कहा अच्छा जाके चेक करना पड़ेगा कि वाकई खोल सकते हैं या नहीं. ये जो अब बेसिकली वी हैव अ सहूलत अकाउंट नाउ. ठीक है, PSX में सहूलत अकाउंट का इंट्रोडक्शन का, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. क्योंकि आपकी यू नो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में देयर इज़ अ 10 पेजर. सो फॉर दैट SECP PSX डिवाइसेस द सहूलत अकाउंट है. तो सहूलत अकाउंट में विद योर NIC आप एक तो फॉरेन अकाउंट खुल जाता है एंड यू कैन ओनली वन अकाउंट. और सहूलत अकाउंट अगर आपने किसी एक ब्रोकर के साथ खोल लिया, यू कैन नॉट ओपन विद एनी अदर ब्रोकर. अच्छा. या अंटिल यू क्लोज दैट अकाउंट. या सो यू कैन नॉट ओपन विद एनी अदर ब्रोकर. सो यू नीड टू क्लोज फर्स्ट अकाउंट. आपको पहले सहूलत अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और फिर आपको दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा. प्लस देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन इन सहूलत अकाउंट up to 1 million now, which is initially 800,000 थी, up to 1 million. So you have to go beyond that. आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना बढ़ाना है तो फिर आपको नॉर्मल KYC पे जाना पड़ेगा. आपको नॉर्मल या नो योर कस्टमर जो ब्रोकर के रिक्वायरमेंट्स हैं, SCP की रिक्वायरमेंट्स हैं, यू नीड टू फुलफिल दैट. तो फिर आप नॉर्मल अकाउंट खोल सकते हैं. नॉर्मल अकाउंट्स मल्टीपल हो सकते हैं.
हो सकते हैं। Yes, normal account multiple with the number of brokers, right? हाँ। Yes, तो normal account बिल्कुल multiple खोल सकते हैं आप. अच्छा, ओके, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोलना ना, फॉर Yeah. एग्जांपल मैं अपने एनआईसी और अपने अकाउंट नंबर के साथ मैं डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोलूँगी। एक चीज़ हमारी ऐसी सेट कि तुम सेम ब्रोकर के साथ भी डिवीज़न कर सकती हो। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू इन्वेस्ट अपने भाई के एंड से, लेट्स से, एंड ही डजंट इज़ नॉट दैट एक्टिव स्टॉक मार्केट में। तो फिर मैंने अपने अकाउंट पे ही उसके पैसे डाले। हाँ, पर मैंने बोला यार ये क्या सब घिच-पिच हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमारे ऐसे सेट के तुम डिवीज़न कर सकती हो, तो ये सीन। देखिए आप कर सकते हैं A B C अकाउंट खोल सकते हैं. वी डू मल्टीपल अकाउंट्स. बट अगेन आपको एक सर्टन पॉइंट ऑफ के बाद, जिस तरह फॉर इंस्टेंस व्हेन वी डू योर KYC, देयर इज़ अ वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ द इनकम, हाउ मच इनकम यू आर ड्राइविंग, एंड इफ योर इन्वेस्टमेंट Sources of- horizon goes beyond, so there's a natural question comes from SECP and being a broker, ठीक है, we need to ask on their behalf, so we know, हम पहले से पूछ के रखते हैं because they can ask this is our requirement. तो हम पूछ सकते हैं कि Sources भाई of आपने income. एग्जैक्टली सोर्सेज ऑफ इनकम और आपने इनकम टैक्स इतना दिया हुआ है और आप इतना, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक अकाउंट के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, कि आप किसी का भी पैसा ला के आप यू कैन गो बियॉन्ड इट, बियॉन्ड सर्टेन मीन्स. सही सो है। उस पर आप डेफिनेटली हम क्वेश्चन कर लेंगे आपसे कि फिर कि हाउ यू कैन, एंड यू नीड टू डिफेंड इट. और फिर क्योंकि टैक्स तो कटेगा ना उस पे। अब मैंने इन्वेस्ट किया तो टैक्स तो सब पे कटेगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी अ पर्सन हैज़ टू प्रूव हिज इनकम. That's very important. So even like for instance, कैसे कमा रहे हैं? yeah, तो आपकी let's say कोई भी XYZ सैलरी है, and if you are going beyond that, तो आपको सेविंग प्रूफ करनी पड़ेगी, या आपको बताना होगा मेरे इनहेरिटेंस में मैंने घर बेचा था तो मुझे पैसे मिल गए इसके, तो इसलिए मैंने पैसे डाल दिए. Okay. यहाँ पे इस तरह पैसा है. सो ये अ ब्रोकर नीड्स टू आस्क सच क्वेश्चंस अंडर द एंटी मनी इन द नॉर्मल अकाउंट. ओके, तो अगर कोई यंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट ये देख रहा है या कोई भी अपना ब्रोकर सिलेक्ट करने जा रहा है, तो क्या चीज़ें हैं जो किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करने के टाइम पे देखनी चाहिए? लेकिन सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट बात है कि देर इज़ अ रेटिंग्स आर इन्वॉल्व, देर इज़ अ ब्रोकर रेटिंग होती है. यू नीड टू सी द ब्रोकर रेटिंग्स, ठीक है, जो कि आपकी इंस्टीट्यूट्स, पैक्रा जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि देती हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं. देन उस ब्रोकर की स्टैंडिंग क्या है, ठीक है, आपकी उसकी रिसर्च टीम कैसी है, रिसर्च रिपोर्ट्स कैसे हैं, ट्रेडिंग टीम कैसी है, व्हाट्स द बैकग्राउंड. सो दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन यू शुड नो, बिकॉज इन पास्ट इट हैपन्स, ये जो अब इतने सारे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए, बिकॉज पहले आपका ब्रोकर का अकाउंट्स, ब्रोकर्स डोंट शो यू, दे आर नॉट वेरी ओपन टू द क्लाइंट्स, ठीक है. तो नाउ इट्स बेसिक, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रोकर की स्टैंडिंग कैसी है, और इट्स देर आर मल्टीपल रेटिंग एजेंसी. अब तो स्टॉक ब्रोकर भी आपके वो लिस्टिंग निकालना शुरू हो गया. PSX भी आपका रेटिंग्स निकालता है. CFA सोसाइटी है जो कि रेट करती है आपको आपकी रिसर्च को, आपके ट्रेडर्स को, आपके ब्रोकरेज हाउस को, Okay. आपकी बेस्ट रिपोर्ट्स को. Okay. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई लव टू से कि वी हैव won all the 5 brokerage awards this time. Oh. This goes all to us, top awards. So So number where one. should one look at? I mean, वेबसाइट्स हैं, कोई CDC की वेबसाइट पे रेटिंग आएगी? PSX की वेबसाइट्स पर रेटिंग मौजूद है जो PSX. PSX करता है, ठीक है. और बाकी ब्रोकर रेटिंग्स, तो अब जिस तरह मेरी लिस्टेड कंपनी है, सो मेरी तो हर चीज़ अवेलेबल है आपको वेबसाइट के ऊपर. रेटिंग से लेके, क्रेडिट रेटिंग से लेके, आपके अकाउंट से लेके, नंबर से लेके, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू. ओके, ओके, ठीक है. सो हम फॉर एग्जांपल टॉप 7, टॉप 10 अगर हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा. बिल्कुल देख सकते हैं, ब्रोकर रेटिंग मौजूद है. ब्रोकर डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि टॉप वॉल्यूम कौन कर रहा है, टॉप वैल्यू किसकी है, नंबर ऑफ अकाउंट्स कौन ओपन कर रहा है. अभी जो PSX ने नया शुरू किया, मोस्ट एक्टिव ब्रोकर इन अकाउंट ओपनिंग कौन है. सो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा ब्रोकर है जो कि मोस्ट एक्टिवली काम कर रहा है, किसके पास ज़्यादा है. सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द रेटिंग्स एज वेल. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, और किन बेसिस पे ये ब्रोकर्स जो है टॉप 3, टॉप 4 के उसमें जाते हैं? जिस तरह मैंने अभी क्राइटेरिया बताया कि हाँ. जो देर आर 4-5 डिफरेंट क्राइटेरियाज जिस पे PSX रेट कर रहा है. हाँ. PSX जो रेट कर रहा है वो टॉप वॉल्यूम बेसिस के, किस ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा अच्छा, वॉल्यूम ठीक होता है, है, ठीक है, ठीक है. वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग किस ब्रोकरेज हाउस की सबसे ज़्यादा है, तो वो मंथली निकाल रहे हैं, ओके. ठीक है. फिर मोस्ट एक्टिव अकाउंट्स किसके हैं, मोस्ट Active नंबर ऑफ accounts. UINs किसने, कौन से ब्रोकर ने ओपन किए हैं, ओके. नंबर ऑफ ब्रोकर्स. सो यू कैन सी दैट. तो ये अब PSX ऑन अ रेगुलर बेसिस निकाल रहा है. उसके Okay. अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया CFA सोसाइटी रेट करता है, हाँ. ठीक है, एशिया मनी रेट करता है आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर. सो यू अंडरस्टैंड कि दिस ब्रोकर इज़ डूइंग वेरी गुड इन रिसर्च, जो कि कंटिन्यूस अच्छा. रेटिंग है, ओके. ठीक है. CFA सोसाइटी को देख सकते. दीज आर द बॉडीज यू कैन अंडरस्टैंड. ओके. और अगर हम बात करें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, तो वो क्या रेड फ्लैग्स हैं जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं? यू नो
बेसिकली यू नीड टू सी, आप जब किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं तो वन टाइम प्रॉफिट्स किसी में आ रहा है, अ पर्सन शुड रियलाइज, बिकॉज व्हाट हैपन इज कि किसी की अर्निंग्स इन्फ्लेटेड आ गई, ठीक है, और हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो इतनी बड़ी अर्निंग्स आई हैं तो मल्टीपल क्या होगा उसका, बेसिक मल्टीपल इतना, और बाद में पता चलता है व्हेन यू डीप डाउन इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू रियलाइज कि सम वन टाइम प्रॉफिट हो सकता है, कोई लिक्विडेशन हो, कोई प्रॉफिट, कोई उन्होंने कोई अपनी एसेट रियलाइज़ किया हो, इट्स नॉट द कोर बिजनेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कोर बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी है किसी भी स्टॉक की, ठीक है, और कोर बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो रिकरिंग बेसिस पे इम्पैक्ट करती है। तो अगर वो वन टाइमर्स हैं किसी भी वजह से तो उसका इम्पैक्ट फिर लॉन्गर नहीं रहता, वो आपको एक प्राइस एक्शन आएगा बट फिर वन डाइल्यूट हो जाएगा। तो पिछले 3 प्रॉफिटिंग से 5 एवरेज साल की देखें, बिल्कुल देखनी चाहिए, ठीक है, और इवन दिस ईयर बिकॉज आपको हर जैसे ही अनाउंसमेंट आता है यू विल एबल टू सी दैट कि भाई इसमें वन टाइमर के रेगुलर बेसिस पे आ रहा है नहीं आ रहा, रिकरिंग प्रॉफिट्स है कि नहीं है, और हर अब तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपको रिसर्च रिपोर्ट्स आप फ़ौरन ही एनालाइज करके दे देते हैं, एनालिस्ट आपको फ़ौरन एनालाइज करके देते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ है, और आपका जो ब्रोकर है उसका काम ये है कि अपने क्लाइंट्स को अपडेटेड रखना कि इसमें देयर इज़ अ वन टाइम प्रॉफिट और ये वाकई में ग्रोथ है, दे हैव न्यू बिजनेसेस, दे हैव अ रिकरिंग अर्निंग, वी शुड गो फॉर इट। तो जहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ होती है तो वो एक्साइटमेंट और नेचुरली आ जाती है। सो अच्छा चले, आपने तो कहा कि मेरी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आई डोंट इन्वेस्ट डायरेक्टली, लेकिन आप अदर देन प्रॉफिट एंड सेल्स एंड रेवेन्यू व्हाट वर द थिंग्स दैट यू यूज्ड टू लुक एट और यू वुड सजेस्ट कि आपको भी देखनी चाहिए स्टॉक्स में? सबसे पहले व्हेन यू सेलेक्टिंग ऑन स्टॉक यू नीड टू सी द इंडस्ट्री, बिकॉज विच इंडस्ट्री यू आर गोइंग फॉर। एक तो एक पर्सनल लाइकिंग होती है, जिस तरह कोई भी इन्वेस्टर है ही बिलोंग्स टू सर्टेन इंडस्ट्री, एक बैंक का एम्प्लॉय है, ही अंडरस्टैंड बैंकिंग बेटर, ही नोज व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर, या कोई सीमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय है सो ही अंडरस्टैंड द सीमेंट सेक्टर। तो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वेस्टर को रियलाइज़ करना कि जिस एम्बिट में वो गुजारा है उसका पर्सनल जो कमिटमेंट, पर्सनल जो अटैचमेंट होनी चाहिए उस इंडस्ट्री से, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि उसको बिजनेस डायनामिक्स समझ आता है। जी, तो जब उसको बिजनेस डायनामिक्स समझ आ रहे होते हैं तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए कंफर्टेबल भी होगा, उसको पता होगा कि इसके बेनिफिट्स प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। अगर आप किसी सीमेंट इंडस्ट्री में हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि सीमेंट की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, क्या रीजंस हैं, या अभी आजकल ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डाउन है तो आपको नहीं लगता आगे सीमेंट में अगले 6 महीने 1 साल में चांस, सो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन, सो यू कैन रिलेट टू इट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग एक्चुअली वी आर मोर डिपेंडेंट बास एट टाइम्स, इन्वेस्टर शुड, दीज आर द बेसिक थिंग्स। सामने वाला बता देगा। एग्जैक्टली, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। तो ये आप और कोई भी एवरी प्रोफेशन इज़ डूइंग समथिंग, आप कोई भी इंडिविजुअल हु इज़ इन्वेस्टिंग वो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा तो उसके लिए रिलेट करना बहुत आसान होता है। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में करोगे जिसको आप खुद जानते हो तो आपके लिए समझना आसान होगा, ओके, और आप खुद समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका कंफर्ट ज़्यादा होगा। तो अगर कोई ब्रोकर भी आपको प्रेफर कर रहा है तो यू विल कनेक्ट टू इट कि यस यू आर राइट, और मे बी यू कैन ऐड यार, या आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिमांड ज़्यादा हो रही है, फर्टिलाइज़र है, ये सीमेंट्स हैं, कोई भी है, बढ़ जाएंगी प्राइसेस। तो आपने उसको कनेक्ट किया तो ब्रोकर कहेगा अगर आप वाकई में ये बात कह रहे हैं तो यस इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, हाँ, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। यस, सो यू अंडरस्टैंड, तो दिस यू कैन रिलेट टू इट। सेम गोज विद बैंकिंग सेक्टर, आपको पता है इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे आ रहा है तो आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। कुछ बैंक्स अपने आप को पोजीशन कर लिया है, कुछ बैंक्स नहीं किया, सो इट डिपेंड्स। सो आप जितना रिलेटेबल चीज़ में होगे, सो यू नीड टू कीप योर आइज ओपन। ओके, ओके। और मुझे बताएं ब्रोकर ऐप्स के बारे में, इतनी आई शुडंट यूज़ द वर्ड बहुत शिट ऐप्स होती हैं। कल मैं मार यासीन से भी पूछ रही थी विच ब्रोकर ऐप यू लाइक द मोस्ट, कहते हैं यार सारी ब्रोकर ऐप्स ऐसी ही हैं। आई मीन अगर हम उसके यूज़र इंटरफेस की बात करें और यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें, सारी ऐप्स का यही है। आई मीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजेस के ट्रेड की ऐप, मैं यूज़ करती हूँ ई क्लेयर की ऐप, और ई क्लेयर अभी ज़्यादातर बाकी लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐप्स के बारे में क्यों काम नहीं कर नहीं, रहे? आप तो सबसे पहले तो आप मेरी ऐप डाउनलोड करें, जेस इन्वेस्ट प्रो, ओके, एंड यू ओके। शुड सी दैट बिकॉज दैट्स द नेम ऑफ द गेम। आई थिंक वो जो पहले ज़माने में हम कहते हैं ना कि सोशलाइजिंग के लिए खाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा घूमना, अब नाउ सोशलाइजिंग इज़ योर मोबाइल फ़ोन। जी, People spend hours in your mobile phone. So whatever you need to do is it should be available in your mobile phone. So that was the name of the game. So we are prone towards that, not Okay. by myself, but being part of the group because I'm digitally focused बहुत ज़्यादा है. So Okay. this is the future. So we are really investing in our app.
आप करेंटली भी जाएँ तो मेरी ऐप के अंदर आपको कॉल्स भी अवेलेबल हैं, रिसर्च कॉल्स अवेलेबल हैं, हमारी मॉर्निंग वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। हम टेक्निकल कॉल्स देते हैं, चार्टिंग अवेलेबल है मेरी ऐप के अंदर। और फ्यूचर में वी आर ब्रिंगिंग सो मेनी थिंग्स मोर, जो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, आपका चैटबॉट भी अवेलेबल होगा। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस वी आर हैव इन्वेस्टिंग हैविली ऑन आवर app, so Okay. you can have that one particular mobile phone can give you the Okay. access to understand कि आप क्या कंपनी में होने वाला है। आप 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, आपके पास डाटा अवेलेबल है, आज की तारीख में भी डाटा अवेलेबल है। आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, Okay. आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हमारे पोर्टल पे जाके आप उनकी 3 साल 5 साल की अर्निंग्स देख सकते हैं। So you That's can very relate to it. important. Yeah. Yeah. So I think this is very important. Once you चलें जी, realize it, डाउनलोड करते या बिल्कुल करें। और I'll download in and check. future, already we signed up with QuickPay, so we are providing के even in-app transfer of money भी हो जाएगा हाँ? within the app. Yes. So this is what we are working on. So you will be surprised कि आप within the app, not this is the experience we are working on कि आपका within the app you can transfer your funds to your broker and then receive from your to your bank as well. Okay. So that's what I'm saying कि we are अच्छा, ये working. फंड्स रिफ्लेक्शन वाला गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अच्छा सो एक्सपीरियंस विद ई क्लेयर। अभी ई क्लेयर तो सीडीसी की ही है ना, तो ई क्लेयर में व्हेनेवर आई ट्रांसफर तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो दिस समथिंग दैट आई लव। बाकी ऐप बहुत मज़े की नहीं है, लेकिन नहीं लेकिन नहीं, I'll इसमें download भी this. फ़ौरन, इसमें भी दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन कि हम इसको फ़ौरन से पहले कि हम फंड ट्रांसफ़र सारे के सारे अवेलेबल हों। वी आर इंटीग्रेटेड विद नंबर ऑफ बैंक्स। अभी हम क्विक पे को यूज़ कर रहे हैं। इन फ्यूचर वी विल बी, यस, हम क्विक पे के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली बैंक्स के साथ भी इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट बैंक टू बैंक, अगर आपका एक पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है तो आप उस बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट से टू द बैंक ट्रांसफ़र कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग। Okay, okay. Tell me, what are the myths about stock market investment? Well, actually, there are a lot of myths. So सबसे बड़ा तो myth ये है कि it's controlled, it's under influence. तो इस पे मुझे पूछना है कि ये सबको ऐसा ही लगता है, और मुझे ये लगता है कि मिथ तो बिल्कुल नहीं है. इट इज़ कंट्रोल्ड समवेयर एंड आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट आल्सो ऑन दैट. सही है, एक एक्सपर्ट गलत होगा, दूसरा एक्सपर्ट गलत होगा, Process कितने actually, एक्सपर्ट्स वो गलत कहते हैं ना, होंगे grapes are sour. तो जब आप नहीं कोई चीज़ अचीव कर पाते तो फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा है नहीं. बिकॉज यू सी इट्स एन ओपन मार्केट, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट कि इफ़ समबडी हैज़ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन और उसके पास फंड्स इतने हैं कि वो इन्वेस्ट कर सके, और उसको एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कोई शेयर नहीं मिल रहा है, और ही इज़ टू बुलिश इन टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, और वो प्राइस को आगे पुश करा, इफ़ इज़ नॉट फाइंडिंग ए सर्टेन प्राइस, तो लोग उसको समझते हैं कि मैनिपुलेटेड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स ऑल इट्स प्राइस एक्शन, कि आपको एक चीज़ किसी लेवल पे नहीं मिल रही और मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं आज ₹1 पे नहीं मिल रही, तो मैं उसके ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ. फॉर इंस्टेंस, आप प्रॉपर्टी में भी देख लें, कोई घर लेने जाते हैं और आपको पसंद आया था और उसकी प्राइस वो कहता है जी मैं इससे कम में नहीं दूंगा, तो यू विलिंग टू पे दैट प्राइस इवन इट्स रिलेटिवली हायर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. सो यू नो सो दिस इज़ व्हाट पीपल थिंक कि ये इट्स मैनिपुलेटेड, या नीचे आ जाता है स्टॉक, ऊपर ले जाते हैं अपनी मर्जी से, ऊपर ले जाते हैं. इफ समबडी लाइक्स दैट, ठीक है, तो आप उसका फंडामेंटल इन्वेस्टर, या सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लाना है तो डंप अगर करवा आपको देते हैं लगता ये. है कि अब इस वैल्यूएशन पे स्टॉक मार्केट या ये पर्टिकुलर स्टॉक हैवी हो गया, तो आप उसके अंदर नहीं जाएं, ठीक है. और दिस इज़ द आर्ट ऑफ मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग. वन पर्सन लाइक इट क्योंकि उसको इस रेट पे भी सस्ता लग रहा है, अगले को उस रेट पे महंगा लग रहा है, या उसने नीचे की बाइंग की हुई थी, वो प्रॉफिट टेकिंग करता है. एंड दैट्स हाउ यू सी अप एंड डाउन इन द मार्केट, कि अगर एक को बुलिश लग रहा है या उसने वो रैली नहीं एंजॉय की या उस प्राइस पे वो नहीं ले सका, और आज स्टॉक ₹20 का है और उसको अभी भी लगता है कि इसमें 20-25% की अपसाइड है, तो वो 20 पे भी आके लेगा. लेकिन जिसने ₹10 पे स्टॉक लिया हुआ, वो समझेगा मैंने तो अपना जो मुनाफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई गेट इट, आई शुड मूव ऑन, या मुझे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो पीपल थिंक, Okay. it And what depends. about the News is news? very important. You need Can to we see manipulate which it? medium it is coming from. You need to understand this social media. There's a lot of news जिस पे बाद में clarifications भी आ जाती हैं. Companies clarification जाती हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है. There's a lot of bogus social media news coming in. So one should know कि भाई कौन से medium, कौन से forum. सबसे पहले तो आप news को फ़ौरन accept ना करें. You need to see which medium is coming from.
और उसको, क्योंकि देखिए कोई भी प्राइस एक्शन चीज़ होगी PSX में नोटिस आएगा कंपनी रिलेटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू डोंट फाइंड एनी सच नोटिस, तो इसका मतलब है कि दिस कुड बी क्वेश्चन मार्क। सो यू जस्ट डोंट रिलाई ऑन दोज सोशल मीडिया ओके न्यूज़। हाँ, अगर वो किसी मेन चैनल, एक क्रेडिबल रिसोर्स से आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप बिल्कुल इस पर अमल कर सकते हैं। तो उस पर या दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट्स एक्चुअली। इंटरेस्टिंग वेरी ओके, यही इंटरेस्टिंग मिथ्स हैं कि आप अपनी मर्जी से न्यूज़ बताओ, आप उस न्यूज़ पे अमल क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने कह दिया भाई इसमें प्रॉफिट्स आने वाले हैं या इसकी अर्निंग्स ग्रो कर जाएगी, डबल कर जाएगी, तो व्हाट आर द रीजंस? आपकी रीजंस क्या है हाँ भाई? उस अपनी अर्निंग रिसर्च करें बढ़ने की वजूहत क्या है? क्या उसने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो वो स्टॉक में इंफॉर्मेशन देगा। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टॉक में नोटिस देना लाजमी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके ओके एंड लाइक व्हाट अबाउट द अदर मिथ्स? आपने एक बड़े मज़े की मिथ बताई, नहीं मैं तो अब दिलचस्पी नहीं, सी इसके होगी और अलावा भी दिस इज़ लाइक मिथ्स, मुझे मिथ्स स्पेकुलेटिव जाननी है। प्लेस। हम हमेशा हमेशा जो है स्टॉक मार्केट को अनफॉर्चुनेटली स्पेकुलेटिव प्लेस समझा जाता है कि इट्स, आप यहाँ पर सिर्फ स्पेकुलेशन होती है, देयर इज़ नो रियल इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह आज भी लोग बात कर रहे हैं मार्केट टच न्यू हाई, ओके और लोग बात कर रहे हैं इट्स अ बलून, बस्ट हो जाएगा। दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दी यू नो रीजंस व्हाई इट्स गोइंग डाउन। क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट में अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें कि स्टॉक मार्केट में जितना इकोनॉमी बिगर मैक्रोज इम्पैक्ट करते हैं, उतनी इम्पॉर्टेंट है कंपनीज के अपने प्रॉफिटेबिलिटीज़ को देखना। सो व्हाट हैपेंड लेटली, जो मार्केट नीचे आई थी उस जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्रोज, क्योंकि हमारी डायरेक्शन नहीं थी। हम एक टाइम के ऊपर इस एज अ कंट्री इस लेवल पे पहुंच गए थे जहाँ पे वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। वी आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर एक्शंस, देयर इज़ नो क्लैरिटी हु विल रन गवर्न द कंट्री। एंड नाउ व्हेन वी सी कि थिंग्स आर गेटिंग हाँ क्लियर और चीज़ें एक प्रॉपर जा रही है, तो देन वी रियलाइज़ कि एक्चुअली जिन कंपनीज जो जो 2.5-3 के मल्टीपल पहुंच गई थी, वो कंपनीज तो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही हैं इवन इन दोज ईयर्स जिस पे मुल्क दिवालिया हो रहा था। सो नाउ अगर आप देखें तो अभी स्टॉक मार्केट 6 के मल्टीपल पे आई है, और हमने इन पास्ट 12 का मल्टीपल भी टच होता हुआ देखा हुआ। सो मार्केट हैज़ स्टिल रेजिलियंस। सो इफ़ देयर इज़ अ रे ऑफ होप टुवर्ड्स द कंट्री, कि जिस तरह मार्केट कंटिन्यू रहती है और जिस तरह से लोग, इट्स अ बिग टास्क। हाँ हमारे मुल्क कोई ओवरनाइट एकदम से हाँ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाँ चीज़ें यस आर इन द राइट डायरेक्शन। तो आपको एंड ऑफ द टनल के ऊपर एक छोटी सी लाइट नज़र आ रही है कि यू विल सी कि इफ़ यू कंटिन्यू टू मूव इन दिस राइट डायरेक्शन, रिफॉर्म्स लेते रहेंगे, ठीक है, आप अपने आप हाँ को एक पर्टिकुलर अपनी वही जितनी चादर है उतना पाँव फैलाएंगे, अपनी चीज़ों को उससे बाहर नहीं निकालेंगे, तो आप इंशाल्लाह यू विल अचीव दोज टारगेट। और उस टाइम के ऊपर आपके मल्टीपल्स, पीपल आर विलिंग टू गिव यू मोर मल्टीपल्स। इन्वेस्टर्स विल से कि अब तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई हैं, FBR ठीक हो गया है, चीज़ें स्ट्रक्चरल हो गई हैं, जो हम पाकिस्तान का एक परसेप्शन था वो चेंज हो गया है, नेचुरली फॉरेन फंडिंग आना शुरू हो जाएगी। सो इट्स द चेंज ऑफ द गेम। ओके ओके सो मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की, तो 3,25,000 है राइट नाउ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यंग इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो पे कर रहे हैं या इन्वेस्ट, दैट्स अ तो वेरी 4 मिलियन है। मैंने तो व्हेन द टीम शेयर द स्टैट्स आई वाज लाइक पहले तो तुम मुझे सोर्स यू नो दिखाओ कि ये इट्स रियलिटी भी है या यार नहीं है। ये बड़े तो अनफॉर्चुनेट है। व्हाई इज उसके दैट सो? अनफॉर्चुनेट ये रीज़न ये है कि लोग जो है ना वो चीज़ों को, क्रिप्टो इज़ समथिंग लाइक, इट्स अब तो खैर फैशन बन गया है इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, लाइक सेइंग दैट कि यस आई डू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग, इट्स ईजी एक्सेस, उनको चीज़ें मिल रही हैं, अवेलेबिलिटी है, मोबाइल पे है, दो इट्स नॉट लीगल इन पाकिस्तान, बट स्टिल पीपल विलिंग टू अपना चैनल, कोई भी लेफ्ट राइट चैनल यूज़ करके दे आर इन्वेस्टिंग फाइनली, बट दे आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, हाँ दे आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स। सो दिस इज़ वेयर, जिस तरह वो क्रिप्टो को लर्न कर रहे हाँ होते हैं कि भाई कि प्राइस एक्शन क्या हाँ है, US में क्या हो जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, दे आर नॉट विलिंग कि भाई यही पर्टिकुलर थिंग्स को रिलेट करना शुरू कर दें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो दे कैन इवन इन्वेस्ट इन मोर, दे कैन अर्न मोर। 84% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में, which is exuberant. So you need to understand that. अच्छा मेरे This is ख्याल से ना उनको क्विक रिटर्न्स की वजह वो से ये लोग असल क्रिप्टो में, चल रहा है ना, that's क्विक the रिटर्न जल्दी जल्दी actually one of जल्दी। the
यू नो वन ऑफ द मिथ्स एज वेल फॉर द स्टॉक मार्केट टू, के लोग समझते हैं कि आना है तो सिर्फ कोई रिटर्न के लिए आना है, और उसमें फिर वो नेगेटिव स्टोरीज बन जाती हैं बिकॉज दे कम अप विद द लॉसेस. ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड द कंपनीज. सो ये हाँ. क्रिप्टो पे भी ये कह रहा हूँ. No, I'm saying crypto पे they do this. एक्सपेक्ट They expect नहीं it नहीं to be very है, quick and बिल्कुल हुए. हो देयर भी आर जाता लॉट है. ऑफ कुछ स्टोरीज sense हो भी जिन्होंने जाता दे है. आर मिलियंस, एंड दैट्स व्हाई पीपल एवरीबडी वांट्स टू बी, वो हमारे हर्ड मेंटेलिटी है एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली, कि वन मेक मनी तो हर कोई उसी को फॉल करेगा, वही पर्टिकुलर स्किप करेगा. सो नोबडी वांट्स टू सिट एंड थिंक एंड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर मैनर कि भाई हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें. तो स्टॉक मार्केट में यू कैन हैव लॉट मोर गुड यू नो स्टॉक्स विच आर परफॉर्म्ड यू नो इन टर्म्स ऑफ लाइक उनके जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स हैं. यू नो लाइक यू नो इफ़ यू सी So some लास्ट names- 1 ईयर में जो रैली आई है, आप फर्टिलाइजर में FFC देख लें. हाँ. ठीक है ना, फ्रॉम हाँ. 100 रुपये से 350 रुपये तक, इट्स एन एक्सूबरेंट हाँ. रिटर्न्स. ठीक है, आप हाँ. सिस्टम्स देख लें, मारी देख लें, देयर आर सो मेनी स्टोरीज यू Systems गया कैन था काफी. रिलेट टू इट. सो मारी इट्स गया द राइट काइंड ऑफ लाइक पिकिंग अप द स्टॉक्स एट द राइट टाइम. आपको इस बैंकिंग गया सेक्टर था में बहुत है. एक UBL बैंक है जिस लाइक आप पिछले 1 साल में रैली कहाँ से कहाँ कर दी. तो देर आर सो मेनी स्टॉक्स यू कैन फाइंड आउट. So once you start investing, once you start, you know, keep track of the things like I mentioned, तो automatically आपके पास बहुत सारी स्टोरीज निकल आएंगी. एक जो सबसे बड़ा दुख है ना मेरा वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे एजुकेशन सेक्टर्स पे काम नहीं किया जाता. हमारी स्कूलिंग, लेट्स से कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर्सनल फाइनेंस, अच्छा एक होता है ना कॉन्सेप्ट तो दे दे कम से कम. फिर ये कि आप खुद रिसर्च करते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, सीखते रहें. वो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं दिए जा रहे होते पर्सनल फाइनेंस के. यू एग्री विद दैट ना? टोटली, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. इनफैक्ट आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें आपने 3,25,000 इन्वेस्टर्स की बात की थी, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि लोगों को सेविंग, वो कहते हैं ना बचपन में हम बच्चे को गुल्लक दे देते थे कि भाई आप इसमें सेविंग करो, एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड, एंड देन यू सेव मनी एंड देन बाय योर ओन टॉयज़ कि जाके फिर अपने. सो ये कल्चर अब हमें डेवलप करना चाहिए स्कूलिंग के. भाई सेविंग, इन्वेस्टिंग, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो ये मेरे ख्याल में तो 10th ग्रेड के साथ स्टार्ट हो जाना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में उनको पढ़ाना चाहिए. यू नो इट कम्स वेरी लेट इन लाइक व्हेन यू आर एक्चुअली प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो देन यू रियलाइज़ कि ओके वी नीड टू डू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारा जो बेस है वो जब ही ग्रो करेगा, बिकॉज व्हेन यू रियलाइज द नंबर ऑफ एसेट क्लासेस यू हैव, इन्वेस्टमेंट कर कहाँ सकते हैं. ठीक है, और फिर ये हम लोगों का जो दुख है 3,25,000 इन्वेस्टर्स वाला, ये दुख भी नेचुरली ख़त्म हो जाएगा बिकॉज के पीपल विल नेचुरली अंडरस्टैंड कि दिस इज़ वन ऑफ द एसेट क्लास वेयर यू कैन इन्वेस्ट. और आप सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे हो, उसमें ऑनरशिप ले रहे हो उस कंपनी के अंदर. इट्स नॉट ओनली शेयर फॉर यू, तो इट्स एन ऑनरशिप. क्योंकि अब ये ना बेसिक अवेयरनेस नहीं है. अभी मैंने एक वीडियो लगाई थी लाइक की, लाइक इज़ अ को-फाउंडर समाया फाइनेंशियल्स. ठीक है, तो वो बता रहे थे कि सेविंग अकाउंट में रखें, करंट अकाउंट में रख के, या फिर अगर आप कैश एज इट इज़ रख देते हैं तो वो डीवैल्यू हो जाता है. अब उसमें कमेंट्स भरे हुए हैं, वो चली गई 4.5 लाख व्यूज़ पे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें कमेंट भरे हुए हैं, तुम सूद रेकमेंड कर रही हो, तुम सूद रेफर कर रही हो, तुम सूद प्रमोट कर रही हो, मुस्तकिल वो कमेंट्स भरे थे. यार पूरा नहीं सुन रही है कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज भी उन्होंने बताया है. ठीक है, यू शुड बी अवेयर, स्कूल शुड मेक स्टूडेंट्स अवेयर कि ये ऑप्शंस हैं. एंड ऑफ कोर्स उसमें शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, फिर उसमें सुकूक है, अगर बॉन्ड्स है या फिर टी बिल्स हैं तो साथ में सुकूक भी है. हर तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं. अब हमारे माइंडसेट कहाँ तक है? गोल्ड, कमिटी, प्रॉपर्टी. एग्जैक्टली. तो यू डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली. तो कह रहा हूँ ना, एसेट क्लास को अंडरस्टैंड करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एसेट क्लासेस है कौन सी. ठीक है, और इवन बैंकिंग की भी आपने बात की तो देयर आर इस्लामिक बैंकिंग एज वेल. ठीक है, जो प्रॉफिट्स देते हैं आपको. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इससे मुझे याद आया कि वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद शरिया, वन ऑफ द ओनली ब्रोकर जो कि शरिया कंप्लाइंट ऐप लेकर आ रहा है. ठीक है, इट्स ऑलरेडी आउट इन द मार्केट, विल बी लॉन्चिंग इट वेरी सून. ठीक है, तो इट्स अ शरिया कंप्लाइंट ऐप कि यू विल ओनली सी द शरिया स्टॉक, KMI 100 देखेंगे आप. सो या, सो वी हैव इट एंड विल बी लॉन्चिंग इट वेरी सून इंशाल्लाह. सो कन्फ्यूजन ही नहीं है कि यू विल ओनली हैव शरिया कंप्लाइंट, ठीक है, प्रोडक्ट, एंड इट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय अल मीज़ान एंड हिलाल. सो वी हैव दिस. सो ऑल्सो मैं वली से और अमार से, मैंने दोनों से क्वेश्चन किया था, मैं आपसे भी करूँगी. मैंने CEO मीज़ान से भी क्वेश्चन किया था एक्चुअली, आई रिमेंबर. तो मैंने उनसे कहा था कि जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक सर्टेन कोटा होता है, उस % से नीचे इंटरेस्ट जो है उसमें भी इंक्लूडेड होता है. तो मुझे अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के CEO ने ये कहा था कि हम चैरिटी करते हैं उतना पार्ट, जब हमें पता होता है कि ये पार्ट जो है और इतना मिनिमम आ रहा है, 2% आ रहा है, 3% आ रहा है, तो
तो हम वो चैरिटी करते हैं. हैव यू सीन दिस हैपनिंग विद Basically, अदर these are कंपनीज? the guidelines of the Sharia. So whoever actually, that's how you are allowed to invest in certain portfolios. ठीक है, अगर आप एक सर्टन कंपनी में जिसका एक सर्टन पोर्शन होगा तो यस, तो गाइडलाइन ऑफ शरिया है वो इन लोगों को यही कहती हैं कि फिर इसको चैरिटी कर दें. सो एंड दैट्स हाउ इट्स बिकम कंप्लाइंट. तो फिर उस तरीके से वो आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लाइंट बन जाती है. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू सी. सो व्हाट वी, कंपनीज खुद भी चैरिटी कर रही हैं. या सो नहीं, आई एम जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपका जो शरिया स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छा, आप लोगों को मैं कह रहे हैं. AMCs की बात कर रहा हूँ. ओके. ठीक है, बट शरिया जो हम KMI 100 इंडेक्स जो कि अप्रूव्ड है बाय द शरिया लॉ, सो ओनली जो हमारी ऐप में होगा, सो देयर से ओनली कंप्लाइंट स्टॉक्स विल बी सीन इन दैट. So I hope people start working on this. Education institute start working on this. Personal finance पे वो अवेयर करना शुरू करें एटलीस्ट. राइट नाउ पॉडकास्ट वगैरह तो चल रहे हैं, उस पर जिसने देखना होता है वो देख लेता है. लेकिन जो शुरू करता है ना इस पर रिसर्च करना, उसको और चीज़ें दिख जाती हैं. पहला जो एक क्वेश्चन दिमाग में डालना होता है ना लोगों के, भाई पर्सनल फाइनेंस जैसी कोई चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड जैसी कोई चीज़ होती है, वो डालेंगे तो असातिज़ा कोई करना पड़ेगा ना. ये एब्सोल्युटली. और इसमें मैं, मेरे ख्याल में हम ओनरशिप लेते हैं बीइंग अ ब्रोकर, बिकॉज आई थिंक वी आर वन ऑफ द पीपल जो जिनको चाहिए कि एजुकेट करना लोगों को. ओके. और हम इस पे बड़ा काम कर रहे हैं. वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, और हम इन्फॉमर्शियल्स पे काम कर रहे हैं, नॉट कमर्शियल्स. और अगर आप अभी भी हमारी कैंपेन्स देखेंगी तो उसमें सिखा सरमायाकारी की समझदारी इज़ आवर टैग लाइन, ओके. टू मेक देम अंडरस्टैंड कि एक्चुअली सरमायाकारी की समझदारी है क्या. एंड वी हैव मेड डिफरेंट DVCs, और अभी वी गोना मेक मोर थिंग्स टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, राइट टूल्स, क्या क्या राइट टूल्स होने चाहिए. सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ब्रोकर, आई थिंक दिस इज़ आवर प्रेडोमिनेंट थिंग दैट वी शुड बी एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स. और हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इसकी मार्केटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं. और वी गोना डू दैट. So what are the tools and resources or apps you'd like to suggest somebody who's working in this financial freedom जिस side? तरह मैंने आपको कहा कि मेरी ऐप JS Invest Pro, Okay. उसमें हम One. आप टेक्निकल एनालिसिस दे रहे हैं, उसमें चार्टिंग दे रहे हैं, उसमें आपको सारी रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं. उसमें हमारी वीडियो कॉन्स जो हम रोज़ एक मॉर्निंग व्यू, एक इवनिंग व्यू देते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग. मॉर्निंग व्यू में हम न्यूज़ सजेस्ट करते हैं कि न्यूज़ क्या है आज के दिन की, और उनके इम्पैक्ट क्या, पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं. और क्लोजिंग पे हम बताते हैं कि आज ड्यूरिंग द डे जो मार्केट अप एंड डाउन है उसकी रीजंस क्या क्या थी, Okay. कौन कौन सी रीजंस थी जिनकी वजह से इम्पैक्ट हुआ. Interesting. सो ये आपके पास अवेलेबल है, एंड दैट दीज ऑल वीडियोज़ आर अवेलेबल विद इन द ऐप. Okay. तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे से लेके आप फिर बाद में ड्यूरिंग द डे भी वी आर कमिंग अप विद द टेक्निकल कॉल्स, रिसर्च कॉल्स, और कोई भी ऐसी चीज़ होती है विच इज़ इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट, तो वी कैन Okay. अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि इरेलीवेंट है इस वक्त, स्टॉक मार्केट से नहीं है, म्यूचुअल फंड से नहीं है, हम पर्सनल फाइनेंस पे बात कर रहे थे, लेकिन जब CEOs आते हैं तो मैं क्वेश्चन ज़रूर करती हूँ उनके वर्क प्लेस से रिलेटेड, क्योंकि ये यंग प्रोफेशनल्स को ही जानना होता है. ठीक है, एंड कोई भी CEO जो अपने इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इफ़ समबडी लेट्स से वांट्स टू वर्क देयर, या फिर वो टैलेंट को अगर आप जनरली आप खुद भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में वर्क प्लेस के बारे में तो बात होनी चाहिए. तो मुझे बताएं कि वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी पे व्हाट आर द थिंग्स यू थिंक कि जो किसी भी वर्क प्लेस को, अब आप तो CEO हैं ना, और फिर आप ही वैल्यूज़ सेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी वर्क प्लेस को टॉक्सिक बनाती हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और उसकी वजह ये है कि मैं अपने कोलीग से हमेशा ये कहता हूँ कि हम ज़्यादा टाइम ऑफिस में गुजार रहे होते हैं. द टाइम वी स्पेंड मोर विद द ब्रेन ओपन, विद आइज ओपन, बिकॉज यू गो होम, यू स्पेंड 2-3 आवर्स एंड यू स्लीप एक्चुअली. सो जो रियल टाइम है दैट्स इन द ऑफिस. तो वर्क इन्वायरमेंट शुड बी दैट कोडाइल कि आप अपने आप को एक दूसरे के साथ यू फील एन्जॉय. ठीक है ना. इफ़ यू आर कमिंग अप इन द मॉर्निंग एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे जाना है आज ऑफिस, नहीं जाना, देन यू आर नॉट वर्किंग एट द राइट प्लेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस being part of this group for over a decade, having the same environment, it's very good. We have a very friendly environment, open communication, open door policies. So that's where we enjoy. We can speak up, and that's where you see merit prevails. So these are such an important thing. Or diversity, gender diversity is very important. So हमने हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स इनकलकेटेड बाय द ग्रुप एक्चुअली, स्पॉन्सर से लेके जब तक हमारी हर ग्रुप कंपनीज में यू विल सी दैट. तो क्या चीज़ें जो आप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्क प्लेस पे, जो उसको टॉक्सिक बनाती हैं? I think negativity, because when one person, if you start things with the negativity, so that creates you spillover effect होता है. और
हाँ, एक मछली पूरे तालाब को एग्जैक्टली तो वो स्पिल ओवर बिकॉज यू नो यू सी अब यू नो एवरी डे इज़ नॉट यू नो संडे यू कॉल इट सो ये हर कोई ना कोई दिन होता है जहाँ पे आपका मूड ऑफ है या कोई भी चीज़ है एंड यूल से और आप अपनी परफॉर्मेंस को या नॉन परफॉर्मेंस को किसी चीज़ का रीज़न बता सकते हो और इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी आजकल की यंग जनरेशन है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर अंडर पेड समहाउ और दे डोंट सी कि व्हाट द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग एक्चुअली दे डोंट रियलिस्टिकली एनालाइज देयर ओन वर्क और दे में से कि हम ज़्यादा काम जब करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बिकॉज वट एवर हैपन्स तजुर्बे यू पे नीड काम टू करें शुरू yes you need to work hard and then you'll get the return that's the main concept you don't work hard you expect them to pay well and then so that's the negativity creates so ऐसे लोग जिस किस्म की negativity create करते हैं वो फिर उनको कोशिश की जाती है कि उनको समझाया जाए बताया जाए ऐसे पार्ट इस किस्म के लोग नहीं होने चाहिए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन Wonderful. I think a lot of people are going to relate with that, I'm sure. It was wonderful having you on the show and I loved listening to you. मैंने सीखा है and I'm sure लोग भी सीखेंगे. Before closing the interview, कोई last piece of advice, success tip young professionals को दें. देखिए you know the success is not overnight everyone should remember that especially when you're going to investing देखिए success is always you need to be patient hard work consistency these are the key things and it's very important for a young professional even for the investors कि आप किसी भी स्टॉक के साथ किसी भी इन्वेस्टमेंट थीम में अंडरस्टैंड करें कंपनी को एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद द कंपनी कि कंपनी का फ्यूचर इज़ गुड देन योर सक्सेस इज़ विद द कंपनी सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट Amazing. Thank you so much for the advice. Thank you so much, ma'am. It was, you know, very good journey for me. Thank you very much.